This is Nimish, founder of Career Naksha. Today we have our 45th guest on our 74th day where we will be talking about how to become a CMA. And we have a special guest today. His name is Mihir Vyas, who is currently Managing Director of Divanji and Company and Secretary of Baroda Chapter of Cost Accountants. He has completed his MCOM and FCMA and has a practical exposure of more than 10 years in the field of cost management and accountancy. And he has expertise in statutory cost accounting in various sectors like pharma, engineering, glass, chemical, and also started working with CMA Shirish Divanji during his studies. And since then, he has been actively involved in various assignments and also working in the space of management information systems, cost compliances, and audits. So he will be joining us shortly. Feel free to ask questions, comment about how he has built his career in commerce and what are the various opportunities if you become a CMA, which is another area most of the people are not aware, but it's like something similar but different from chartered accountant CAs or company secretariat CS, which is another rewarding field. So feel free to ask questions from our expert when we go live. So feel free to ask questions from our expert. Hi, Mir, can you hear me? Yes, Nimesh bhai. I'm hearing you. Welcome and thanks for joining in. Looks like we are live, and I have given your introduction already to all our viewers, and also like talked about you as a CMA. So हम इसी के साथ शुरुआत करेंगे। मिहिर जी, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन Yes. और अपनी करियर जर्नी के बारे में बताएं कि आपने अब तक क्या क्या किया है एंड हाउ डिड यू बिकम अ CMA एंड इस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। प्लीज हमारे सारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे Yes. में बताएं। First of all, I thank you so much, Nimesh bhai, for inviting me, and you guys did excellent job. Uh, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया. I will brief my introduction. Actually, I am a commerce background student. मैंने 2013 में 10th के बाद कॉमर्स ज्वाइन किया था. आफ्टर बीकॉम I have joined CMA. BCom में I am a gold medalist. I got 100 out of 100 in costing subject. Fortunately, CMA and MCOM without any trial I completed in first. After CMA through campus placement. यस, गो अहेड मीर भाई। हाँ, मैंने कैंपस स्टेशन में ही मुझे जॉब मिल गया था. I got the job in L&T, but similarly Alembic Pharma में मुझे second offer मिला था. So being a Baroda, I selected Alembic Pharmaceutical Company in Business Finance Department. Okay, okay. This is my brief introduction. Great. So, Mihir bhai, like, how did you join Divanji and how did you set up your own firm as a practicing CMA? उसके बारे में भी प्लीज हमारे सारे व्यूअर्स को बताएं। Yes. एक्चुअली मैंने बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ. बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैं एमबीए ज्वाइन करने वाला था, बट मेरे फादर और मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि जो गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं वो क्या करते हैं, तुम एक बार मार्केट में घूमो. देन आई एम सर्चिंग. मैं थोड़ा सीनियर पीपल हु आर डूइंग चार्टर अकाउंटेंसी में उनसे मिलने गया. फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरी वाले से भी मिला, सीएमए से भी मिला. एक्चुअली मुझे लगा only out of 100 student 10 या 50% स्टूडेंट एडोप्ट सीएमए कोर्स. फिर मैंने इंडस्ट्री में भी गया. मैं फिर मुझे दीवान जी सर का इंट्रोडक्शन हुआ.
दीवान जी सर ने भी मुझे एक बात बताई कि माई फादर ऑल्सो वांट टू बिकम आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर उन्हें बताया कि सीए मैंने क्यों ज्वाइन किया। एक्चुअली सीएमए की ब्यूटी है यू कैन कंप्लीट इन 2 years ओनली, एंड आप एमबीए भी करते हो तो 2 साल का ही टाइम लगता है। एंड कॉस्टिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया आई गॉट 100/100 इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट, सो आई ज्वाइन दीवान जी एंड सीए में। मैंने 2-2.5 साल का एक्सपोजर में दीवान जी सर के अंडर में ही लिया। आफ्टर 2.5 year मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था इन बिजनेस फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके ओके ग्रेट। सो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि ये सीएमए है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट पता होता है या फिर उनको कंपनी सेक्रेटेरिएट थोड़ा बहुत पता होता है, बट सीएमए के यस बारे यस में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो मिहिर जी इसके बारे में भी बताएं कि सीएमए बनने से आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, राइट, और किस तरीके से आप इस प्रोफेशन में आने के बाद आप कौन कौन सी कंपनीज के साथ क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम किया है, आपने इंजीनियरिंग क्लाइंट्स के साथ काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ काम किया है। तो एज अ सीएमए आपका क्या रोल रहा है और आपने क्या क्या काम किया है इस सेक्टर में, इफ यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दोज इन यस डिटेल, यस तो बहुत ग्रेट, इट विल बी रियली श्योर हेल्पफुल फॉर श्योर। ऑल स्टूडेंट्स। या एक्चुअली निमेश भाई, सीएमए इंस्टीट्यूट इन 1944 सीएमए के इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंट इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। आफ्टर इन 1959 एंड 28 में 1959 दिस इज अ स्टैट्यूटरी एक्ट इन पार्लियामेंट में पास हुआ था। अंडर दिस एक्ट सीएमए इंस्टीट्यूट की, एक्चुअली पहले सीएमए का नाम आईसीडब्ल्यू था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बिफोर 10 years थोड़ा नेम चेंज हुआ है, इट्स ए कॉस्ट आईसीएआई, इट्स ए कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो मेंबर्स होते हैं सीएमए के, सीए कॉस्ट अकाउंटेंट, इसको सीएमए बोला जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएमए के ऑलमोस्ट 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है एट प्रेजेंट, एंड मोर देन 70,000 मेंबर्स है, स्टूडेंट है करंटली, सॉरी मेंबर्स है। अब देखा जाए तो दिस इज अ मोर देन 50 years ओल्ड सीएमए चैप्टर और सीएमए संस्था। मैं अब बड़ौदा चैप्टर की बात करूं तो बड़ौदा चैप्टर को भी ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं, एंड बड़ौदा चैप्टर के ऑलमोस्ट मोर देन 300 मेंबर्स है, एंड मोर देन 2000 स्टूडेंट है एट प्रेजेंट। अभी आप सीएमए कोर्स की बात कर रहे थे। एक्चुअली सीएमए कोर्स 3 स्टेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज इज फाउंडेशन स्टेज, सेकंड स्टेज इज इंटर स्टेज, एंड थर्ड इज फाइनल। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपको क्लियरेंस के लिए 50% कंपलसरी मार्क लाने पड़ते हैं। आप 12वीं के बाद फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो फॉर बीकॉम ओनली, तो बीकॉम के बाद आपको इंटर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। इंटर के अंदर 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, दोनों में 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, थियरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। लीगल एस्पेक्ट भी होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है। लाइकवाइज फाइनल में थोड़ा अपग्रेड होता है कोर्स, उसमें भी 2 स्टेज होते हैं और 4 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑडिट, अकाउंटिंग, बिजनेस वैल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट कवर इन फाइनल कोर्स ऑफ। ओके फाइनल भी आपको पास आउट के लिए 50% कंपलसरी लाने होते हैं, ओके और इंडिविजुअली भी 50% और ग्रुप वाइज भी 50% कंपलसरी है। 2 स्टूडेंट 2 ग्रुप एग्जाम देते हैं तो वो उसका इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया रैंक पब्लिश करती है, सिंगल ग्रुप में रैंक पब्लिश नहीं होता है। ओके ओके तो सीएमए क्लियर करने के बाद मीर जी आपने कौन कौन सी कंपनीज में काम किया और कौन कौन से क्लाइंट्स को आपने हैंडल किया, उनके साथ आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी प्लीज बताएं। यस मैं आपको थोड़ा मैं ब्रीफ भी बताता हूँ। मैं 2008 में दीवान जी एंड कंपनी ज्वाइन किया था। उस टाइम पे अभी सभी को फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करने की इच्छा होती है, तो मेरा नसीब था कि मुझे मेरा फर्स्ट असाइनमेंट RIL में ही था, रिलायंस इंडस्ट्री में, बॉम्बे। उसके बाद मैंने
जायडस कैडिला फार्मा सेक्टर में भी काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम किया, फर्टिलाइजर में भी काम किया था। आफ्टर कंप्लीटिंग सीए में मैंने आपको भी बताया कि मैं एलेम्बिक फार्मा मैंने ज्वाइन किया था, मैं 5 साल वहां पे था। एलेम्बिक फार्मा कंपनी की ब्यूटी है कि वहां पे मुझे इंजीनियरिंग डिवीजन में भी काम करने का मौका मिला था। आपने येरा ग्लास का नाम सुना होगा, इट इज अ वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट, तो मैंने येरा ग्लास में भी काम किया था। 5 इयर्स के बाद मुझे दीवान जी सर ने ऑफर किया था कि यू कैन ज्वाइन अस दीवान जी इन कंपनी। मेरी वाइफ ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटेंट, तो वो ऑलरेडी दीवान जी सर के साथ ही थी, तो मुझे लगा कि एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है मुझे प्रैक्टिस करने का खुद का, तो आई ऑप्ट दिस ऑप्शन। एंड 2015 के बाद आई एम ए पार्टनर ऑफ दीवान जी इन कंपनी। एट प्रेजेंट वी हैव मोर देन 100 क्लाइंट, डिफरेंट डिफरेंट एरिया लाइक सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, ऐसे वेरियस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं अभी। Great. So, यस निमेश भाई। great, मीर भाई, देर आर स्टूडेंट्स जो आज हमें देख रहे हैं, अभी जस्ट गुजरात बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं थोड़े दिन पहले, पर्टिकुलरली 10th के स्टूडेंट्स एंड 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स, और 10th के बाद जो कॉमर्स लेना चाहते हैं वो वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स में जो आपको लगता है कि दे शुड ऑप्ट फॉर इन टुडे सिनेरियो, और आजकल उनकी डिमांड है और उसके वजह से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, उसके अलावा इफ दे बिकम अ सीए और अ सीएमए और अ सीएस, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है? राइट, मैं 2-3 दिन पहले ही मैंने एक संदेश में इंटरव्यू दिया था, आफ्टर 12th व्हाट आर करियर ऑप्शंस। कॉमर्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, आपको लीगल साइड, कॉमर्स के लीगल साइड में भी जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट भी जा सकते हो, आप सर्विस सेक्टर, एनी सेक्टर में कॉमर्स के अंदर जा सकते हो। एक्चुअली 12th के बाद देर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज, मेरे हिसाब से 30 से 40 ऐसे कोर्स है यू कैन ज्वाइन इजीली। उसमें कोई परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपका एफर्ट अच्छा होना चाहिए क्लियर करने के लिए। लाइक मैंने बोला कि बीकॉम हो सकता है, बीएसडब्ल्यू हो सकता है, मास जर्नलिज्म हो सकता है, होटल मैनेजमेंट हो सकता है। दीज आर द प्रैक्टिकल कोर्सेज। अदरवाइज आप आईटी में भी जाना तो बीएससी हो सकता है। फिर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहो तो ये टैली का कोर्स कर सकते हो, जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। ये सीए और सीएमए के अंदर भी सर्टिफिकेट कोर्स है, लाइक सीए सर्टिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर के भी कोर्स है, फिर एसएबी भी कोर्स है, उसका मार्केट में भी बहुत डिमांड है। स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होते हैं उसमें भी अच्छा स्कोप है, एनीवन कैन अर्न 20 to 25,000 पर मंथ लाइक ग्रेजुएट। मैंने बोला बीएससी बीएसडब्ल्यू है। आफ्टर ग्रेजुएशन देयर आर आल्सो फ्यू अपॉर्चुनिटी लाइक एमबीए है, एमएसडब्ल्यू है, फिर ये ऑल प्रोफेशनल कोर्स आर आल्सो आफ्टर ग्रेजुएट, ऐसा एलएलबी है, एलएलएम है। दिस टाइप ऑफ कोर्स यू कैन अडॉप्ट। उसमें भी आप सैलरी रेंज देखो तो 40 से 50,000 पर मंथ इजीली यू कैन अर्न, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट ऑन योर नॉलेज। राइट, नहीं एकदम सही बोला मीर भाई, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज एफर्ट्स, और आपका खुद का मेहनत और नॉलेज दैट यू एक्वायर ड्यूरिंग योर स्टडीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो लोग मेहनत या इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो उनका मेजर रीज़न यही होता है, या तो उनको नॉलेज कम होती है, या प्रैक्टिकली दे आर नॉट अवेयर, या उन्होंने कुछ भी प्रैक्टिकली काम नहीं किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक व्हेन वी वर टॉकिंग इंटर्नशिप्स, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी व्हेन दे वर्क फॉर अ कंपनी, राइट? तो मीर भाई, लाइक ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन और ड्यूरिंग दिस सिनेरियो ऑफ लॉकडाउन, तो इसमें क्या क्या, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं इस सेक्टर में, क्या क्या स्टूडेंट्स को और मौका मिलेगा, उसके बारे में प्लीज मीर भाई, इफ यू कैन like share some of those suggestions or knowledge with some of our students, so that would be great. Yeah, एक्चुअली इनिशियल स्टेज ऑफ कोविड हमारा दिव्य भास्कर में एक
पब्लिश हुआ था इंटरव्यू, हमने देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली स्टूडेंट फॉर इनके लिए, अपने लोकल पीपल के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अभी क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट को आफ्टर इन कोविड सिचुएशन सब लोग, ये आपने बोला ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो गए, कोर्सेज चलते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत का सरकार ने अभी देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भी बहुत सारी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, अपने गवर्नमेंट को भी अपना सपोर्ट करना चाहिए। मैं अभी लास्ट टाइम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस गया था, तो अपना देर आर सो मेनी ऑर्डर गवर्नमेंट ने देके रखे कि आपको पांच से ओनली लोन डिस्बर्स करने के कंपनी के लिए, दूसरा कुछ काम ही नहीं करना है। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट ने हमको दिया है पब्लिक को नहीं है। विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यू कैन गेट एवरीथिंग। हमारे बहुत सारे क्लाइंट है, दे आर ऑल्सो रिक्वायरिंग सम फंड, क्योंकि 2-3 महीने से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ड्यू टू लॉकडाउन। मार्च महीना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी इंडस्ट्री एंड एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, दीज आर क्लोजिंग टाइम। तो क्लोजिंग टाइम में क्या होता है, बुक्स क्लोज करने हो गए, स्टॉक ऑडिट होता है, स्टॉक तुमको लेना होता है, देयर आर सो मेनी कंप्लायंसेस देयर। और दूसरा मार्च महीने में सबसे ज्यादा डिस्पैच रहता है कंपनी को, तो सबका वो भी रुक गया था। तो देयर आर लिक्विडिटी प्रॉब्लम फॉर द कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, 1 साल का मोनेटोरियम में सबको लोन देना चालू किया है। इट विल टेक टाइम बट सबको मिलेगा, 100% मिलेगा। विथ हम अभी क्या, जो कंपनी एनपीए के अंदर है वो डिमांड करेगी कि मुझे ये चाहिए, तो इट इज डिफिकल्ट टू गिव एनी अमाउंट दिस एनपीए कंपनी। पर जो जेन्युइन क्लाइंट है उसको 100% मिलेगा। और दूसरा क्या है, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी लास्ट मंथ ही 2 महीने पहले कोविड जब चालू हुआ था, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने गवर्नमेंट को ऑफर किया था, आईसीएमआर को, इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर को, कि कोविड का जो भी किट होता है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हम कॉस्टिंग करके देंगे। नॉट ओनली मेडिकल इंस्टीट्यूट, अपने वीएमसी को भी बोला था कि मेडिकल के लिए आपका जो भी कॉस्टिंग, उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है 200 रुपए की, उसका प्रॉपर कॉस्टिंग और प्रॉपर परचेसिंग प्राइस होता है, यू कैन बाय, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर पीपल। So these are so many initiatives taken by the our institute. Secondly, सबको ऐसा लगता है मंदी है, लेकिन ये कोविड के बाद अपना जो डेवलपमेंट होगा वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा होगा, अभी तक नहीं इतना डेवलपमेंट होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देयर आर एम्पल स्कोप इन एनी फील्ड। राइट। और स्टूडेंट के लिए भी ऐसा लगता है कि एग्जाम के लिए सब स्टूडेंट अभी सब टेंशन में है। सब लोगों ने ऑप्शन दिए है, एमएसयू ने भी ऑप्शन दिया है, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी ऑप्शन दिया है, सबने ऑप्शन दिया। आप दिसंबर में भी ऑप्ट कर सकते हो और अभी भी ऑप्ट कर सकते हो। सीए ने अभी 2 दिन पहले ही ऑप्शन निकाला था। हमारी इंस्टीट्यूट भी सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू एग्जाम देने का प्लानिंग कर रही है। ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीएमएस कोई भी डिग्री जॉब भी अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है जॉब अवेलेबल नहीं है। आप बस अभी फोकस करो स्टडी पे और कंप्लीट करो। राइट, ग्रेट, बहुत ग्रेट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी मीर भाई कि अभी लॉकडाउन होने के बावजूद देर आर इंडस्ट्रीज विच आर डूइंग वेल, एंड लाइक यू सेड एज अ कॉस्ट and management accountant, you are helping pharmaceutical companies and PP kit manufacturers to lower down their cost and also optimize their cost so that वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए and they can distribute more and more to the needy and the patients who are suffering from COVID situation. Great. So Mir bhai, like also please talk about some of the skills or computational skills or basic people skills, soft skills which are required for students to become a good CMA and also students who can learn these skills, तो उनको कहाँ से कैसे सीख सकते हैं वो लोग, जिससे वो अपस्किल कर सके अपने आप को और अपने आप को ट्रेन कर सके। राइट, एक्चुअली कॉस्टिंग इज अ कॉमन सेंस ओनली। ऐसा कोई मेजर स्किल का रिक्वायरमेंट, बस आपका कॉमन सेंस और आपका क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए। अभी आप देखते हो कि किचन में आपकी लेडीज काम करती है तो उसका मैनेजमेंट कितना परफेक्ट होता है, इतना क्वांटिटी इतना ही डाल। कॉस्टिंग का वही कंसेप्ट है
कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें कितना मटेरियल चाहिए, आप जो उसको कंट्रोल कर लोगे बस, यू कैन थ्रू दी योर प्रोडक्ट एंड यू कैन मार्केटेबल. हाँ, थोड़ा बिजनेस कम्युनिकेशन, आईटी स्किल लाइक एसएपी है, टैली है, फिर प्रेजेंटेशन, दीज आर बेसिक स्किल आर रिक्वायर्ड. बट आपका कॉमन सेंस होगा तो यू कैन थ्रू इजीली आपका कैरियर अच्छा बन सकता है. सीएम एक्चुअली सीए में होल्ड पोजीशन लाइक एग्जीक्यूटिव टू डायरेक्टर फाइनेंस. तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे अलग अलग स्किल का रिक्वायरमेंट होता है. लाइक मैन पावर मैनेजमेंट होता है, फिर आप एवरी ईयर आपको अपनी टीम को हैंडल करना रहता है. लाइक एमआईएस, फिर डेटा एनालिटिकल स्किल, दिस टाइप ऑफ स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर सीए में. बट Right. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉमन सेंस. Right, right. No, definitely. I think that's very important because अगर basic common sense है तो you can solve any problem. And I think what you are trying to hint is कि वो problem solving skills जो होती हैं वो बहुत important है. उसी अगर आप उसी में ही focus करेंगे तो I think as a cost accountant या as a CMA or any commerce person, right? आप executive हो या एक्चुअली director level हो, like it will be helpful. यस हिमेश भाई, ट्रू, वेरी ट्रू. Great, great. एक्चुअली So, इंडिया में काम करने के लिए ये स्किल, बेसिक स्किल के अलावा कॉमन सेंस और मार्केटिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है. आदमी को कैसे मैनेज करना. एक्चुअली क्या होता है निमेश भाई, एवरीथिंग इज कंट्रोलेबल सब्जेक्ट टू मैन पावर. आप सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, आईटी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आदमी का दिमाग कब चेंज हो जाता है किसको पता नहीं होता. ह्यूमन बीइंग आर सबसे डेंजर रहता है. तो मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. right, right, great. Thank you so much, Mibai. It was great hosting you and so much of information on CMA and a lot of opportunities in commerce. Any last suggestions that you have for Career Naksha? Like how can we help student community better and किस तरीके से we can add more value to our students in Vadodara and not just in Vadodara but entire Gujarat and even across India. उमेश भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि आप जो काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क, यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क. हाँ, अभी आपने 10वीं का रिजल्ट और 12वीं का रिजल्ट आया, पेपर में पढ़ा होगा. मोस्ट ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में आ जाते हैं. तो मैंने आपके साथ तो मैं एसोसिएट हूँ, मुझे पता है कि यू आर डूइंग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो, एप्टीट्यूड पे 1-to-1 काउंसलिंग करते हो. काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. कोई पेरेंट्स के 12वीं के बाद देखते हैं क्या करना है, बीकॉम के बाद क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको एप्टीट्यूड हर 2-3 साल में करवाना ही चाहिए, आई मस्ट से. दूसरा, पेरेंटिंग और स्टूडेंट 1-to-1 वर्कशॉप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. यू आर ऑल्सो डूइंग दिस सेम. उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट डिप्रेशन में होता है तो आप उससे भी बाहर ला सकते हो. अभी क्या होता है, सीएमए की एग्जाम होती है तो उस दिन रात को स्टूडेंट का फॉर्म आता है, ऐसा भी मेरा पहला पेपर बहुत खराब गया, मैं क्या करूंगा, मैं एग्जाम नहीं दूंगा. एग्जाम नहीं देना वो ऑप्शन नहीं है. उससे क्या होता है, 100% फेल ही हो गया. एग्जाम देने से कुछ तो चांस है पास होने का. तो मैं समझाता हूँ कि नहीं नहीं, यू गो फॉर द एग्जाम. स्टूडेंट के लिए डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है. तो आई मस्ट से कि यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, और एप्टीट्यूड टेस्ट आप कराओ जितने भी हो सके. एप्टीट्यूड टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. मेरा बच्चा भी 2 साल का है. आई एम प्लानिंग के 5-6 साल का होगा तो उसके कराऊंगा, उससे 2 साल बाद कराऊंगा. उससे क्या मुझे पता चल जाएगा कि उसकी कौन सी स्किल अपग्रेड हुई है. आपने मुझे बताया था कि उसे आदमी का पता है कौन से कैरियर में जा सकता है, वेदर ही गो फॉर द कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट स्किल है उसके पास. तो आई मस्ट से आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू फॉर योर स्टार्टअप. और आप जो भी काम कर रहे हो, मेरा सपोर्ट आपके साथ ऑलवेज रहेगा. All right. यस Thank you भाई. so much. Thank you, और Mihai, for all the great words. We will continue to do great work and we will continue to serve our society. And with the great message that you had कि हमें अभी सारे स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली जो एग्जाम्स के बाद 10th और 12th में दे आर डिसाइडिंग कि हमें क्या करना चाहिए आगे, दे मस्ट टेक साइकोमेट्रिक टेस्ट. जैसे आपने बोला कि उससे एप्टीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, उनका इंटरेस्ट, उनकी क्षमता और उनका क्या किस फील्ड में वो जा सकते हैं, किस करियर में वो अपना अच्छा कर सकते हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्लस उनको एक 1-on-1 मेंटर या एक गाइड ट्रू. होना हर करियर के
फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लाइक आपने कहा कि आपको भी शुरुआत से काफी लोगों ने गाइड किया, इवन व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग विद दीवानजी एंड यू हैव बीन गाइडेड बाय हिम, राइट? सो एवरी स्टूडेंट नीड्स अ मेंटर, एवरी पर्सन इवन हु इज अ प्रोफेशनल, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोफेसर हो या प्रोफेशनल हो, ही नीड्स अ मेंटर, कांस्टेंट मेंटर टू एक्सेल इन हिज करियर। सो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक आपने कहा। एंड डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू टू डू गुड वर्क and help students not in Vadodara but just even in Gujarat. So thank you for all your motivation and inspirational words. निमेश भाई, एक चीज और कहना चाहता हूँ। अभी क्या होता है कि स्टूडेंट कैरियर काउंसिलिंग, आपको मुझे पता नहीं आपके साथ स्टूडेंट आते हैं, पेरेंट भी आते हैं, लेकिन पेरेंट्स का आना बहुत जरूरी है। मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था, मेरे पापा मेरे साथ हर हर जगह मेरे साथ आते। मैंने 12वीं कंप्लीट किया, 12वीं में आई गॉट 80%। फिर बीकॉम में भी मेरे साथ आए थे। आफ्टर बीकॉम मुझे जो भी कोर्स ज्वाइन करना था उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पेरेंटिंग सपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने फिर सीएमए ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था कि सीएमए के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। लाइक यू कैन डू जीएसटी ऑडिट, इनकम टैक्स, कॉस्ट ऑडिट, ऐसे बहुत सारे एरिया है। तो पेरेंट पेरेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मैं आपका एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप वर्कशॉप करते हैं पेरेंट को भी इनवाइट करें। और आप ऐसे भी अच्छा तो काम कर ही रहे हो। For sure, definitely we have been thinking कि हम पेरेंट्स को भी और ज़्यादा इन्वॉल्व करें, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज दे आर एट होम। और स्टूडेंट्स भी अपने मम्मी पापा माता पिता के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो दे बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड ऑल्सो देयर करियर डिसीजन मेकिंग। So definitely we will try to involve more parents and make them aware about why it is important to take a right career decision. Thank you so much, Mihir. Thank you so much for joining us Thank today. you, And thank you, Nimesh bhai, for inviting me as a chief guest. Thank you so much as an expert, and we will definitely do something, and I will always support you in any thank you so time. much.